हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग सीए फाइनल एग्जामिनेशंस. In this video, I'm going to discuss the statutory update that has been released by the institute for the upcoming examinations. Now, in the statutory update, the notification circulars also include the circulars which were relevant for the previous attempt as well. So, in this video, I'm going to highlight only those notifications and circulars which were released after the previous attempt and which are relevant specifically for the current attempt. Obviously, the notification circulars which were relevant for the previous attempt will also be relevant for you. They will be in your syllabus. So that link is given in the description box. So you can view that and this video both so that you get an idea कि अभी specifically कौन से additional notifications या circulars issue हुए हैं जो आपके attempt के लिए specifically applicable हैं. ठीक है, चलिए so शुरू करते हैं. I have specifically marked them. सो कैपिटल गेन्स में एक स्पेसिफिक हम लोगों के लिए नोटिफिकेशन आया है. नाउ वी ऑल नो 54 ईसी एग्जेम्पशन है ना. सर्टन कैपिटल गेन अगर आपको होता है और अगर आप एक गवर्नमेंट नोटिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हो, सो यू कैन गेट एन एग्जेम्पशन. इन्वेस्टमेंट हैज टू बी डन विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड द maximum amount exempt can be 50 lakhs. So we know all the rules, right? Now in this particular case, what has been notified is that government has notified a new bond. So Housing and Urban Development Corporation Limited, any bond which is redeemable after 5 years as a long-term specified asset for the purposes of 54 EC has been notified. Okay, so this is an important update which has to be kept in mind. Now the next notification or circular is in relation to the TDS provisions, deduction, collection, and recovery of taxes. So there was a circular in relation to waiver of interest. So waiver of levy of interest under 201 or 206, that is TDS or TCS in specified cases. So basically, sometimes what happens is, I think ये ऑफिस में आप लोगों ने भी कभी देखा होगा. Now you all know कि TDS पे करने की जो डेट है normally that is 7th of the next month and in case of March it is 30th of April, right? So अब suppose दिसंबर मंथ का TDS है, मुझे 7th of January तक पे करना था. मैंने 7th of January को ही पेमेंट किया, मेरे बैंक अकाउंट से पैसा चला भी गया, बट ड्यू टू सम प्रोसेसेस और मे बी ड्यू टू सम बैंक इश्यूज और वॉट एवर वो पैसा गवर्नमेंट को मिला 8th को. तो जब मेरा रिटर्न प्रोसेस होगा तब मेरा मतलब मेरे चालान पे भी हो सकता है 7th की डेट दिख रही है, बट मेरा जो रिटर्न प्रोसेस हुआ तब वो डेट उसने 8th पकड़ ली और उसने मुझे शॉर्ट डिडक्शन का या शॉर्ट कलेक्शन का जो है वो इंटरेस्ट चार्ज कर दिया. ठीक है. नाउ पार्ट ऑफ मंथ और फुल मंथ वी ऑल नो टीडीएस में वो भी आपको फुल मंथ ही माना जाएगा. सो इसमें द लॉट ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेशंस की ये टेक्निकल ग्लिचेस हैं. हमारे पेमेंट्स तो हमने विद इन ड्यू डेट ही इनिशिएट किए, हमारे अकाउंट से डेबिटेड भी हो गए, तो फिर आप हमको इंटरेस्ट मत लगाओ बिकॉज हमने तो ड्यू डेट के अंदर पेमेंट कर दिया है. So यहाँ पर CBDT directs that the Chief Commissioner of Income Tax or the Director General of the income tax or the principal commissioner of income tax may reduce or waive the interest charged where the payment is initiated by the taxpayers, deductors, collectors, and the amounts are debited from their bank accounts on or before the due date, and tax could not be credited to the central government before because of some technical problems which were beyond the taxpayer. तो आपके अकाउंट से डेबिट एंट्री दिख जानी चाहिए कि हाँ मेरे अकाउंट से तो 7 तारीख को पैसा चला गया था, आपको 8 को मिला, तो ये हमारी गलती नहीं है, ये कुछ तो टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हुआ है. assessee can make an application. Now in that case, if the assessing officer or the relevant, basically the concerned officer, whoever has been given the authority, if he finds कि हाँ ठीक है ये बराबर है, ये genuine claim है, तो फिर he can waive off the interest. No waiver application shall be entertained beyond 1 year from the end of the financial year in which the interest is charged. ठीक है. So उसके 1 साल के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन कर सकते हो. An application received for waiver of interest shall be disposed of within a period of 6 months from the end of the month. तो जब आपको रिसीव हुई है, मतलब जब अथॉरिटी को रिसीव हुई है, वहां से एंड ऑफ मंथ से 6 months के अंदर अंदर उसको वेव ऑफ करना है. द ऑर्डर इशूड बाय द CCIT, DGIT और PCCIT shall be final and no petition against the order shall be made by the or entertained by the board. ठीक है. Now the circular shall come into effect on 28th of March. ना यहाँ पर एक और क्वेश्चन था कि अगर ये सर्कुलर 28 मार्च 25 को आएगा तो इसके पहले की जो इश्यूज हैं क्या वो असेसी मतलब ये दे सकता है. कैन असेसी गिव एन एप्लीकेशन फॉर एनी basically short deduction or any notice that has been issued prior to 28th of March.
So that has been clarified कि yes they can be entertained. तो फाइनली पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है दैट इज कि आपका वो विद इन 1 ईयर वाला कंसेप्ट या जो टाइम लिमिट जो ऊपर हमने बात करी वो फुलफिल होनी चाहिए। तो अगर 23-24 का केस है तो 31 मार्च 25 तक आप कभी भी एप्लीकेशन दो, द अथॉरिटी विल एंटरटेन इट, लेकिन उसके बाद नहीं एंटरटेन होगा। तो 28 मार्च से इफेक्ट में आया है उसका ये संबंध नहीं है कि उसके पहले के डिफॉल्ट्स हैं अगर, तो आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन अप्लाई, जस्ट दैट 1 ईयर के विद इन होना जरूरी है। Further, it is also clarified that waiver applications can be entertained even before the issuance of the said circular, right? So this is a very important amendment in the TDS TCS interest related glitches. Now, assessment procedures: notified date for intimation of Aadhaar number by person who has been allotted PAN before 1st of October 2024 on the basis of Aadhaar enrollment ID. तो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं ये सब चीजें कि आप जब रिटर्न फाइल करते हो तो यू हैव टू कोट योर आधार, यू हैव टू कोट योर पैन नंबर, बोथ योर आधार एंड पैन शुड बी लिंक्ड वगैरह। नाउ देयर वाज आल्सो वन प्रोविजन कि अगर आपको जब पैन अलॉट हुआ था तब आपको आधार एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे हुआ था एंड बाद में आपको आधार मिल गया है, तो यू हैव टू इंटीमेट योर आधार नंबर एज वेल, ठीक है। तो आपको पैन के टाइम पे आपका आधार नंबर रजिस्टर्ड नहीं था, आपके पास नहीं था इशू किया हुआ, अब आपको इशू हो गया तो यू हैव टू इंटीमेट दैट टू द गवर्नमेंट। सो वो इंटीमेट करने की टाइम लिमिट हैज बीन नोटिफाइड। सो व्हाट हैज बीन गिवन, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड दैट एवरी पर्सन हु हैज बीन allotted PAN on the basis of enrollment ID has to intimate his Aadhaar number on or before 31st of December or any such date notified by the CBDT। तो extension आ सकता है अगर उनको लगता है तो, बट अभी के लिए the date is 31st of December, है ना। चलिए आगे देखते हैं। Now this all has been included in the previous video. I will suggest you कि आप वो देख लें, and जो students already attempt दे चुके हैं तो उनके लिए again this video will be a very time saver video, right? क्योंकि आप already वो सारे amendments पढ़ चुके हो। नाउ टैक्स ऑडिट एंड एथिकल कंप्लायंसेस, छोटे छोटे से चेंजेस हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में 3CD में, वो हम लोग एक बार कवर कर लेते हैं कि जो भी चेंजेस आए हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2025 इन द क्लॉजेस ऑफ 3CD दैट हैव बीन गिवन इन बोल्ड इटैलिक्स। सो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 23। सो बेसिकली क्लॉज 22 जो MSME के बारे में बात करता है, उसको क्या, उसमें क्या क्या रिपोर्ट करना है वो आपको बोल्डर इटैलिक्स में हाईलाइट किया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2025। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू गिव द इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो MSME एक्ट के अगेंस्ट अगर आप टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट नहीं करते हो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो अलग से डिस्क्लोज करना है। टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड टू अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब आपको साल भर में जितना भी पेएबल था वो आपको रिपोर्ट करना है, और उसमें से कितना आपने ड्यू डेट में पे किया है और कितना आपने पे नहीं किया है। ड्यू डेट एज इन MSME वाली ड्यू डेट जो 43BH में हम लोगों ने बात करी हुई है, वो आपको नॉट पेड जो है वो आपका 43BH में डिसअलावेंस में जाएगा, राइट। सो टोटल में से पेड और अनपेड आपको बाइफरकेशन बताना रहेगा, राइट। सो दैट इज समथिंग विच हैज टू बी केप्ट इन माइंड। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम रेफर्ड टू इन 43B, द लायबिलिटी विच प्री एग्जिस्टेड on the previous year but was not allowable in the assessment of the preceding previous years. So यहाँ पर the term allowed has been replaced with allowable. So specifically any sum which is otherwise allowable but not allowed in any preceding previous years due to operation of 43B can be allowed in this previous year on the payment basis, ठीक है। तो अगर वो तब नहीं अलाउ हो पा रहा था, अलाउेबल नहीं था, तो आप अभी उसका बेनिफिट ले सकते हो क्योंकि आपने उसको पे कर दिया है। was incurred in the previous year and for clauses other than the clause H, क्योंकि आप लोगों को 43BH का ऑलरेडी ऊपर अलग से रिपोर्टिंग है, तो यहाँ पर जब आप रिपोर्ट करते हो जो आपका 43B का जो स्पेसिफिक क्लॉज है क्लॉज 26, वहां पर आपको MSME का पेमेंट यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करना है। वो उसका एक रीजन ये भी है कि यहाँ पर जो ड्यू डेट लगती है 43B के बाकी क्लॉजेज में वो 139(1) की ड्यू डेट है, लेकिन आपका जो 43BH का ड्यू डेट है वो अलग है, तो वो क्लॉज ही उन्होंने पूरा अलग रखा है। उसका इंटरेस्ट, उसका जो भी आपका ड्यूरिंग द ईयर का इनकर हुआ है वो, उसमें से कितना पे हुआ कितना अनपेड हुआ, वो सब कुछ उधर ही डिस्क्लोज किया जाएगा, ठीक है।
Now, clause 31 relating to 269 SST, amount of each loan or deposit or accepted and code of the nature of such amount. So this is something which is specifically you have to highlight कि जितने भी लोन्स लिए हुए हैं उसकी स्पेसिफिक कोड नेचर कि क्यों वो लोन लिया है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड. सो नो कोड आपको यहाँ पर अलग अलग दिए हुए हैं. देखो कि कौन सा कोड आपको सिलेक्ट करना है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पेमेंट और नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन. सेम चीज आपको यहाँ पर पर्टिकुलर्स ऑफ ईच स्पेसिफाइड सम में भी बोली गई है कि अमाउंट ऑफ ईच लोन और डिपॉजिट एक्सेप्टेड एंड द कोड एंड नेचर ऑफ सच अमाउंट. नाउ व्हेन यू टॉक ऑफ 269T, particulars of cash repayment of loan exceeding the limit specified, the amount of each repayment of loan or deposit or any specified advance and the code of the nature of such amount, again that has to be disclosed. Right now, 36B, whether the assessee has received any amount on for buyback under 222F of the clause. So this is something which is new because the section has been inserted newly. तो पहले ये बायबैक 222F वगैरह के कंसेप्ट ही नहीं थे. अक्टूबर 2024 से जो भी बायबैक हो रहे हैं वहां पर ये अप्लीकेबल है, तो ये आपको अलग से रिपोर्ट करना रहेगा. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स दैट हैव बीन एप्लीकेबल इन द क्लॉज 3 रिपोर्ट 3CD, दैट इज अ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. तो आपको रिपोर्टिंग रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको इनको ध्यान में रखना है. राइट नाउ, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में हम चलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग में. Transfer pricing में there is an important update which is relating to safe harbor rules. So the safe harbor rules have been notified. Now safe harbor rules में उन्होंने पूरा provisions आपको दिया हुआ है, कौन से transactions cover होंगे, कौन से assessees eligible होंगे, क्या procedure follow करनी है, everything. So let us go through it one by one. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज सेफ हार्बर रूल्स जो है वो नोटिफाई हो गए हैं. सो आपको एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. नाउ व्हाट इज सेफ हार्बर? आई होप यू ऑल मस्ट बी रिमेंबरिंग, बट स्टिल लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू. सो सेफ हार्बर इज अ काइंड ऑफ अ सेफ रूल यू कैन से, जो आप एक ट्रांसफर प्राइसिंग असेसी जिसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ, वो फॉलो कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है. तो सरकार, जैसे हमारा इनकम टैक्स में प्रिजम्पटिव है, थोड़ा सा वैसा समझ लो आप कि आप हम उससे लिंक करके समझेंगे, आपको और इजीली समझ में आ जाएगा कि मिनिमम इतना प्रॉफिट आप शो कर दो तो आपको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. सिमिलर टू दैट उन्होंने बोला है कि अगर आप यहाँ पर सेफ हार्बर अप्लाई कर देते हो, सेफ हार्बर के सारे कंडीशंस फुलफिल करते हो, सारे रिपोर्ट्स मेंटेन करते हो, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हो, तो फिर आपका वो एएलपी डिटर्मिनेशन, वो असेसमेंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. जो आपने बोला है वो मान लिया जाएगा, प्रोवाइडेड आपका ट्रांजैक्शन सेफ हार्बर की लिमिट के अंदर होना चाहिए. तो अगर कोई एसएससी है जिसका नॉर्मली भी प्रॉफिट मार्जिन लेट से सेफ हार्बर में परसेंटेज है 20%, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने बोला है कम से कम 20% आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा. मेरा नॉर्मली भी 20-21% रहता है, बट अब मैं नॉर्मल रिटर्न भरती हूँ, फिर वो डिपार्टमेंट क्वेश्चन करता है, फिर टीपीओ के पास जाता है, फिर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करो, फिर वो एएलपी के ऊपर असेसमेंट होगा, फिर सपोज डिपार्टमेंट ने बोला नहीं नहीं 20 नहीं 25 होना चाहिए, फिर मैं लड़ती हूँ कंपेरेबल्स को, एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो प्रैक्टिकली लाइक वी आर प्रैक्टिसिंग इन द टैक्सेशन डोमेन, we see in a lot of cases there are year on year assessments going on in transfer pricing because of the determination of ALP comparables and everything. So safe harbor gives you a way out कि अगर आपको वो प्रॉफिट मार्जिन आप उतना दिखा देते हो और बाकी के प्रोविजंस जो भी है वो फॉलो कर लेते हो, तो वो एज इज आपका थ्रू हो जाएगा, है ना. हर बार आपको वो असेसमेंट वाला एक चीज जो है वो एटलीस्ट एसएससी एंड असेसिंग ऑफिसर शुरुआत से सेम पेज पे है. राइट. सो डिस्कस कर लेते हैं पहले परसेंटेजेस आपको जो दिए हैं. प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज. नाउ हर एक सर्विस का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, हम कुछ कुछ हेडिंग्स देखते हैं, यू कैन रीड इट वंस. सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बिजनेस एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन सपोर्ट, कन्वर्टिंग ऑफ ट्रांसलेटिंग, ये सारी सर्विसेज जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आएंगी. ना ऑपरेटिंग मार्जिन कितना डिक्लेयर करना है असेसी को फ्रॉम द ट्रांजैक्शन in relation to the operating expense is not less than 17% अगर आपका ट्रांजैक्शन डज नॉट एक्सीड अ सम ऑफ 100 crores. ठीक है. सो इफ द वैल्यू डज नॉट एक्सीड 100 crores देन योर परसेंटेज शुड नॉट बी लेस देन 17%. एंड अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू इज मोर देन 100 crores बट डज नॉट एक्सीड 300 crores, योर प्रॉफिट परसेंटेज शुड नॉट बी लेस देन 18%. ठीक है. तो अगर इतना है तो आपको सेफ हार्बर आप ऑप्ट करके उतना दिखा दो, नो टेंशन, है ना. चलो, सिमिलरली
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब वही हमारा बैक ऑफिस सपोर्ट, कॉल सेंटर्स। आज के टाइम में देखें तो बहुत सारी ऐसे एंटिटीज है जो फॉरेन एंटिटीज के बैक एंड सपोर्ट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन सब में बैक एंड ऑपरेशंस में सपोर्ट करती हैं, है ना, इंडिया से। तो वो कॉस्ट प्लस मार्कअप पे ही ट्रांजेक्शन्स करती हैं कि इंडिया में हमने इतनी कॉस्ट इनकर करी है, उस पे हमारा इतना मार्कअप है और आप इस पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो। अगर वो इसी के आसपास बैठता है तो बेटर टू गो फॉर अ सेफ हार्बर, है ना, दैट इज अ सेफ रूल। सो यहाँ पर अगेन द परसेंटेज इज सेम जो हमने ऊपर बात करी, 17-18 डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। नाउ knowledge process outsourcing, the value does not exceed 300 crore and the operating profit margin declared by the eligible assessee is not less than 24% if the employee cost in relation to the operating expense is at least 60%। तो अगर आपकी एटलीस्ट 60% एम्प्लॉय कॉस्ट है तो आपका प्रॉफिट शुड नॉट बी लेस देन 24%। अगर 40 से 60 के बीच में है एम्प्लॉय कॉस्ट इन रिलेशन टू द ऑपरेटिंग एक्सपेंस, देन परसेंटेज शुड बी 21। एंड अगर 40% से भी कम है, डज नॉट एक्सीड 40%, देन आपको परसेंटेज इज 18%। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डिपेंडिंग ऑन द एम्प्लॉय कि एम्प्लॉय का कितना इंपॉर्टेंस है, आपका प्रॉफिट परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राइट। नाउ विच इनकम्स आर कंसिडर्ड और विच ट्रांजेक्शंस आर कंसिडर्ड एज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, एनिमेशन, ये जो सारी सर्विसेज हैं, वो फाइनेंशियल, मार्केट रिसर्च, ये सबको उन्होंने इधर इंक्लूड किया है। R&D को यहाँ पर नहीं दिया, R&D के लिए अलग से हेडिंग है, ठीक है। नाउ एडवांसिंग ऑफ इंट्रा ग्रुप लोन्स, ये भी बहुत कॉमन ट्रांजैक्शन होता है। आपको फॉरेन एंटरप्राइज ने लोन दे दिया इंडिया में बिजनेस करने के लिए, तो अगेन वहां पर जो इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे उस पर डिबेट होती है, TPO का कुछ कहना है, आपका कुछ कहना है। तो अगर डिनोमिनेशन INR में है तो सरकार का ऐसा कहना है कि देखो, द इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर्ड इज नॉट लेस देन 1 year marginal cost of funds lending rate of SBI as on the first day of April। मतलब जो MCLR होता है हमारे बैंक्स का, SBI का बेसिकली 1 April ऑफ द प्रीवियस ईयर, उसका जो MCLR है वो प्लस कितनी क्रेडिट रेटिंग है उसके ऊपर मार्जिन। जैसे हम लोग लोन लेते हैं बैंक में तो यही होता है, MCLR प्लस मेरी क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे मार्जिन जोड़ेंगे वो लोग और मुझे टोटल इंटरेस्ट रेट बताएंगे। सिमिलर चीज उन्होंने बोली कि SBI का MCLR लो एंड देन उसके बेसिस पे आप उसमें क्या ऐड करो डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट रेटिंग, कि अगर बहुत अच्छी क्रेडिट रेटिंग है तो 1.75, जैसे जैसे रेटिंग कम होगी इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। और अगर क्रेडिट रेटिंग अवेलेबल नहीं है and the amount of loan does not exceed 100 crores in aggregate as on 31st March, total loans है ना, including loans to all the AEs, then you have to add a straight away 4.25%। ठीक है, this has been given। now intra group loan where the loan is not advanced by an enterprise being a financial company या बैंक, तो उस financial enterprise में नहीं होना चाहिए। does not include credit line or any other facility which has no fixed term repayment। तो ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा कि क्रेडिट CC लिमिट वगैरह, जो एक फिक्स टर्म नॉर्मल लोन होना चाहिए रिपेमेंट टर्म का, तो यहाँ पर कवर होगा ना। सिमिलरली फॉरेन करेंसी में अगर डिनोमिनेटेड है तो 30th ऑफ सितंबर नॉट लेस देन द रेफरेंस रेट ऑफ द रेलेवेंट फॉरेन करेंसी। रेफरेंस रेट नीचे उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, वो हम देख लेंगे कि यूरो का कितना है वगैरह वगैरह। तो उस फॉरेन करेंसी का जिसमें डिनोमिनेटेड है आपका लोन, as on 30th of September of the relevant previous year plus again depending on the credit, आपका जो ये है मतलब डिपेंडिंग ऑन द आपका कितना क्रेडिट रेटिंग है, मार्जिन हैज टू बी एडेड। जैसे हम लोगों ने INR में ऐड किया वैसे ही यहाँ पर भी आपको मार्जिन जो है वो ऐड करनी है। जस्ट अ सेकेंड। So, if the amount of loan advance does not exceed a sum of equivalent to 250 crore in aggregate as on 31st of March of the relevant previous year, then these would be the margins depending on the credit rating। अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है मार्जिन कम रहेगी, जैसे जैसे क्रेडिट रेटिंग कम होगी मार्जिन बढ़ती जाएगी। इफ अमाउंट ऑफ लोन एडवांस टू द एसोसिएट एंटरप्राइज इंक्लूडिंग लोन्स टू ऑल द एंटरप्राइज एक्सीड्स 250 करोड़, तो हमने ऊपर बात करी डज नॉट एक्सीड, यहाँ पर अगर एक्सीड होता है तो फिर अगेन दे हैव गिवन स्पेसिफिक परसेंटेजेस एंड C माइनस और D वेयर द क्रेडिट रेटिंग इज नॉट अवेलेबल, तो भी 6% से आपको बढ़ाना पड़ेगा, राइट। कॉर्पोरेट गारंटी अगर दे रहे हो, इंटर कंपनी कॉर्पोरेट गारंटी एसोसिएट एंटरप्राइजेस जो है वो डज नॉट एक्सीड 100 करोड़
then 1% and exceeds 100 crores, and the credit rating of the associated enterprise is done by an agency registered with the SEBI in which is of the highest सेफ्टी, तो फिर आप यहाँ पर कवर हो सकते हो। तो 100 करोड़ के अंदर क्रेडिट रेटिंग का ये नहीं है, exceeds 100 crores and the credit rating has been obtained. Now corporate guarantee extended by company to its wholly owned subsidiary being a non-resident in the respect of any short term or long term borrowing. ना यहाँ पर ये जो माइन्यूट चीजें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे मैंने ऊपर भी बताया कौन से लोन्स कवर होंगे, कौन से लोन्स कवर नहीं होंगे। तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, हो सकता है ट्रांजैक्शन जो हो वो ये नहीं हो कि कॉर्पोरेट गारंटी तो दी है बट एक्सप्लिसिट गारंटी एक्सटेंडेड by a company to its wholly owned subsidiary being a non-resident in respect of any short term or long term borrowing, ये वाला डेफिनेशन अगर नहीं फिट बैठता तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ से बाहर हो जाओगे। सो ये जो बेसिक चीजें होती हैं कि डेफिनेशन जो दिया हुआ है, जो कंडीशंस दिए हुए हैं टू अप्लाई टू बी फिट इन दिस सेफ हार्बर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फॉलोड। ठीक है, सो ये बेसिक चीजें हैं, सिर्फ परसेंटेज याद नहीं करना है हमको। बहुत सारे केसेस में बच्चे ये करते हैं, सेफ हार्बर में हम सिर्फ परसेंट याद कर रहे थे कि हाँ अगर मोर देन ये है तो 15%, 18%, 17%, नहीं, वो 15, 18, 17 लगने के लिए आपका कंडीशन क्या है, वो जो यहाँ पर साइड वाले कॉलम में दिए हैं जो हम लोगों ने बात करी, वो आपका इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि वो पहले फुलफिल होना चाहिए, देन आपके ऊपर ये परसेंटेजेस अप्लाई हो सकते हैं। Now R&D, again R&D में क्या कहा है, the operating profit margin declared by the eligible assessee from the eligible international transaction in relation to operating expense incurred is not less than 24% where the value does not exceed 300 करोड़, तो 300 करोड़ के अंदर होना चाहिए। Contract research and development means R&D of new theorems, algorithms in computer science, technology of level of operating, data management, computer software, internet technology, रिसर्च इनटू सॉफ्टवेयर, ये सारे जो R&D में चीजें आती हैं, एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना, सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह बनाना, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें आपके R&D में इंक्लूड होंगी। प्रोविजन ऑफ R&D होली और पार्टली रिलेटेड टू जनरल फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, अगर नॉर्मल फार्मास्यूटिकल ड्रग्स से रिलेटेड है, जैसे जो मेडिसिनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, नई दवाइयां बनाना वगैरह, वैक्सीन वगैरह डेवलप करना, नॉट लेस देन 24% बट द वैल्यू ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन डज नॉट एक्सीड 300 crores, अगेन कंपेरेबल टू अ ड्रग already approved by the regulatory authority in dosage strength and performance and characteristics and intended use. मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ कोर ऑटो कंपोनेंट्स अगर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुड नॉट बी लेस देन 12%। कोर ऑटो कंपोनेंट मतलब क्या, अगेन नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट कि कोर ऑटो कंपोनेंट में क्या क्या आएगा, इंजन के पार्ट्स, पिस्टन रिंग्स, कूलिंग सिस्टम, ट्रांसमिशन, गियर्स, व्हील्स, सस्पेंशन, ब्रेकिंग पार्ट्स, लिथियम आयरन बैटरीज, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ये सारे आपके कोर में आएंगे। अब नॉन कोर का अलग से है, तो नॉन कोर जो ऊपर नहीं आएंगे वो सारे नॉन कोर में आ गए आपके, तो 8.5% है, तो कोर में परसेंटेज अलग है आपका 12 है और नॉन कोर में 8.5 है। रिसिट ऑफ लो वैल्यू एडिंग इंट्रा ग्रुप सर्विसेज फ्रॉम वन और मोर मेंबर्स, इंटायर वैल्यू ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग नॉट एक्सीडिंग 5%, डज नॉट एक्सीड, द वैल्यू डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। तो अगर कोई भी लो वैल्यू एडिंग ग्रुप सर्विसेज है, लो वैल्यू एडिंग इंट्रा ग्रुप सर्विसेज मतलब क्या, दैट आर परफॉर्म बाय वन और मोर मेंबर्स ऑफ द मल्टीनेशनल ग्रुप in the same enterprise which are in nature of support, not a part of the business, है ना, core activities में नहीं है, not in the nature of shareholder services, neither require the use of unique intangibles, neither involve control significant risk, तो ये सारे आपके इसमें आ जाएंगे। बट इट डज नॉट इंक्लूड रिसर्च डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, IT, जो ऊपर हम लोगों ने बात करी वो सारे इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, है ना। सो दिस हैज टू बी स्पेसिफिकली फॉलोड एंड हाउएवर द मेथड ऑफ कॉस्ट पूलिंग, एक्सक्लूजन ऑफ शेयर होल्डर कॉस्ट, डुप्लीकेट कॉस्ट, ऑल दीज हैज टू बी सर्टिफाइड बाय एन अकाउंटेंट। जो भी आप फॉलो कर रहे हो that has to be certified by an accountant. So these are the safe harbor
percentages that have been notified. Now, who is an eligible assessee? Means a person who has exercised a valid option for application of safe harbor rules and is engaged in providing all these services जो ऊपर notified हैं उसमें अगर आप engaged हो तो फिर आप एलिजिबल असेसी में आ सकते हो और आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। रेफरेंस रेट जो मैंने बताया अलग अलग करेंसीज, तो यूएस डॉलर है 6 मंथ्स टर्म सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट बाय शिकागो। सो वो अलग अलग कंट्री के हिसाब से आपको अलग अलग दिया हुआ है। यूरो में है तो यूरो इंटर बैंक रेट 6 मंथ्स वो आपको लेना है। यूके पाउंड स्टर्लिंग में आपको इंडेक्स एवरेज जो 6 मंथ्स का है दैट यू हैव टू टेक। जापान में है तो हर एक कंट्री का उन्होंने अपना अपना नोटिफाई करके दिया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, उनके जो रेफरेंस रेट्स है, जैसे हम एसबीआई का लेंगे अगर आईएनआर में डिनोमिनेटेड है, अगर वहां के कंट्री के करेंसी में डिनोमिनेटेड है तो उनका आपको रेफरेंस रेट लेना है। क्रेडिट रेटिंग, सो वेयर द एसोसिएट एंटरप्राइज ओनली वन क्रेडिट रेटिंग, तो वही पकड़नी है। अब क्रेडिट रेटिंग मतलब कहाँ से करानी है क्रेडिट रेटिंग, तो आज सेबी एंड आरबीआई एक्रीडेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होनी चाहिए। और अगर मोर देन वन क्रेडिट रेटिंग है तो सबसे लोएस्ट वाली को आप पकड़ोगे, मतलब एक ए है और एक ए प्लस है और एक बी भी है कहीं से, तो आपको लोएस्ट वाली क्रेडिट रेटिंग जो है वो कंसिडर करनी है फॉर दैट मार्जिन, है ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सारे आपके बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस आएंगे। कॉस्ट, ईसॉप कॉस्ट आएगी, रीइंबर्समेंट्स आएंगे जो कि आपने खुद ने पे किए, रिकवर किए, बट इट विल नॉट इंक्लूड आपके नॉन बिजनेस रिलेटेड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रोविजंस, प्री इनकॉर्पोरेशन, फॉरेन फ्लक्चुएशन लॉसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम टैक्स, ये सब आपके बिजनेस रिलेटेड खर्चे नहीं होते तो ये नहीं आएंगे। एंड रीइंबर्समेंट्स आप जो इंक्लूड करोगे वो आपके कॉस्ट टू कॉस्ट होने चाहिए, उसमें कोई मार्कअप कंसिडर नहीं होना चाहिए, है ना। सिमिलरली ऑपरेटिंग रेवेन्यू, आपके सारे बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो हैं, नॉर्मल ऑपरेशंस हैं, वो सारे इंक्लूड होंगे, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इनकम, फॉरेन फ्लक्चुएशंस, ट्रांसफर असेट, जो वन इनकम टैक्स रिफंड्स, ये जो सब वंस इन अ वाइल होते हैं जो आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं है वो इंक्लूड नहीं होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंसेस इन 200 हैज टू बी कंसिडर्ड एज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। नाउ नो टैक्स और लो कंट्री ज्यूरिसडिक्शन, वो नीचे आएगा क्यों ये मेंशन किया हुआ है, तो कोई भी कंट्री जिसमें मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स इज लेस देन 15% वो नो टैक्स या लो टैक्स कंट्री में माना जाएगा। एंड रेलेवेंट प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर इन विच द ऑप्शन इज वैलिडली एक्सरसाइज, जहां जहां पर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का टर्म यूज हुआ है वो कौन सा है वो हम लोगों को मेंशन कर दिया उन्होंने ना। प्रोसीजर क्या है, सो यू हैव टू फर्निश अ फॉर्म 3CEFA ऑन और बिफोर 139(1) फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। और अगर मोर देन वन के लिए आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो फर्स्ट जो भी है उसके पहले आपको फाइल करना है ऑन और बिफोर। द रिटर्न शैल बी फाइल्ड for the relevant assessment year, or the first of the assessment year should be furnished on or before the date of सबमिशन ऑफ फॉर्म 3CEFA। तो आपका रिटर्न जो है वो सबमिट हो चुका होना चाहिए। द ऑप्शन शैल कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर 3 years और लेस, तो वो आप डिसाइड करोगे आपको कितने साल के लिए लेना है। ऑब्वियसली एओ विल वेरीफाई आप वैलिड हो कि नहीं, अगर एओ को लगेगा तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफरेंस करेगा फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ द सेफ हार्बर रूल। एंड द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 months जो है वो रेफरेंस नहीं करना है फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। तो फॉर्म आया उसके विद इन एंड ऑफ द मंथ, विद इन 2 months आप डिसाइड कर लो आपको टीपीओ के पास जाना है कि नहीं। टीपीओ सारा वेरिफिकेशन करेगा और अगर टीपीओ को लगता है कि नहीं ये तो गड़बड़ है, इनवैलिड है, तो वो इशू करेगा कि नहीं दिस इज नॉट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, ही इज नॉट एन एलिजिबल, या तो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो आप इसको इनवैलिड कर दो। ऑर्डर पास होने के बाद फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ शैल पास, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास भी टाइम लिमिट है कि 2 महीने के अंदर आपको ऑर्डर पास करनी है। एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना इज मैंडेटरी। इसके आगे असेसी कैन फाइल ऑन ऑब्जेक्शन टू द कमिश्नर विद इन 15 days ऑफ द रिसिट ऑफ द ऑर्डर एंड द कमिश्नर ऑल्सो हैज अ पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इस पे फाइनल ऑर्डर लेने के लिए। अगर इन लोगों ने टाइम लिमिट के अंदर अंदर ऑर्डर्स नहीं दिए तो उसका ऑप्शन वैलिड मान लिया जाएगा, ठीक है। ना जो 3% का हमारा कंसिडरेशन होता है ट्रांसफर प्राइसिंग में वो यहाँ पर नहीं लगेगा। नो कंपेरेबिलिटी एडजस्टमेंट एंड अलाउंस अंडर सेकंड प्रोविजन शैल बी मेड टू द ट्रांसफर प्राइस डिक्लेयर्ड अंडर द सेफ हार्बर रूल्स। एंड ऑल्सो यू हैव टू मेंटेन ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन ऑल, वहां पर कोई आपको ये नहीं है, सो यू हैव टू मेंटेन द डॉक्यूमेंट्स।
Safe harbor rules are not applicable in respect of eligible transaction with an associate enterprise in a country under 94A or in a no tax or low tax जो ऊपर define किया गया है, and the assessee would not be entitled to invoke mutual assessment agreement procedure under DTAA if the TP in relation to the eligible transaction is accepted under safe harbor rules. So these are the additional conditions that the assessee needs to fulfill if he wants to apply or get assessed under the safe harbor rules, right? So all these are the basic important notification circulars that are applicable to your attempt. Go through all these things, and if you have any issues, feel free to discuss. All the very best.